कि इस शादी का अर्थ क्या है and what is the meaning of the marriage today in today's context. और आज के संदर्भ में इस शादी का मतलब क्या है। May God open our eyes आज खुदा हमारी आंखों को खोले, because we are soon going to read a parable कि शीघ्र हम एक दृष्टांत को पढ़ेंगे which is connected with the marriage. जिसका कि संबंध शादी के साथ है। But before I go into that parable, लेकिन इससे पहले कि मैं उस दृष्टांत में जाऊं, I want to show you what is being said here. मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। Let us be glad and rejoice. आओ हम आनंदित और मगन हो। Marriage is a time to rejoice. शादी वो समय होता है जहाँ पर आनंद मनाया जाता है। Marriage is not a time for hard feelings. शादी वो समय नहीं होता जबकि मनमुटाव हो या दिल शिकनियां हो। Marriage is not a time to take revenges. शादी वो समय नहीं होता जब बदले लिए जाएं। Marriage is a time to rejoice शादी वो समय होता है जब आनंद मनाया जाता है and to be glad. और मगन होने का। It's a very joyous occasion ये बहुत ही खुशहाल समय है when a young brother and sister in Christ are coming together. जबकि एक जवान भाई और एक जवान बहन जो मसीह में एक साथ मिलते हैं। It's a matter of great joy. ये बहुत ही महान आनंद का विषय है। I think you can understand it. मैं सोचता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। So I think, is there anybody sad tonight? क्या आज रात्रि कोई है जो कि बहुत दुखी हो? I think nobody is sitting here who's sad. मैं सोचता हूं यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बैठा जो कि दुखी हो। But we are very glad for this particular marriage. इस बार शादी को लेकर हम बहुत ज्यादा आनंदित हैं। When the two have come as one. जबकि ये दो एक मत होने के लिए आए हैं। In the 7th month, 7वें महीने में they got engaged. उनकी सगाई हुई। Amen. आमीन। And in the 12th month, अब 12वें महीने में they are getting married उनकी शादी हो रही है। after 5 months. 5 महीने के बाद। Is that true? क्या सत्य है? And so we thank God that the bridegroom's name is Anugrah, which means grace. और खुदावंत का धन्यवाद हो कि दूल्हे का नाम अनुग्रह है जिसका मतलब है अनुग्रह। And the meaning of Elisha is protected by God. और एलीशा का मतलब है खुदा के द्वारा सुरक्षित। That is the real meaning of that name. और ये वास्तविक मतलब है उस नाम का। And that is what the bride of Christ enjoys today, is the protection of her groom. और दुल्हन का आज यही बात है दुल्हन के साथ कि आज अपने दूल्हे की सुरक्षा में वो पाई जाती है। And when the capstone came to the pyramid, और जब चोटी का पत्थर पिरामिड के पास आया, it had one message. उसके पास एक संदेश था। Grace. Amen. Grace. अनुग्रह, अनुग्रह। So we are seeing such a marriage today आज एक ऐसी शादी को देख रहे हैं when 2025 is closing. जब 2025 खत्म हो रहा है And we are closing 25 with a marriage और हम 2025 को एक शादी के साथ बंद कर रहे हैं and entering 2026. और 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। Is that the message? ये संदेश है। When this year began, I said some things जब ये साल शुरू हुआ मैंने कुछ बातें कही and I'm going to bring to your memory those things और मैं आपकी याददाश्त में उन चीजों को ताजा करना चाहता हूँ because what we preached and what we are seeing, we are now in the fulfillment of that word. जो हमने प्रचार किया जो बातें हमने देखी अब हम उस वचन के पूर्तिकरण में हैं। Let us be glad आओ हम आनंदित हो and rejoice, और मगन हो for the marriage of the Lamb is come. क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है। The prophet said, नबी ने कहा all these marriages ये तमाम शादियां is a type and pattern of that big marriage, और तस्वीर और नमूना है उस बड़ी शादी का, the marriage of the Lamb. मेमने की शादी। Amen. आमीन। And his wife had made herself ready. और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. और उसे शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। For the fine linen is the righteousness of saints. क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धार्मिकता है। Amen. Just 1 minute. एक मिनट। I think you have got your Bibles.
मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के पास अपनी बाइबलें होंगी, And even if you don't have, you can listen to it. और यहाँ तक कि अगर आपके पास बाइबल हो भी नहीं तो आप सुन सकते हैं। In Matthew 17, मत्ती 17 में I'm reading verse 1 and verse 2. मैं पहली और दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ। And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पे ले गए। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए। Turn back to Revelation 19, वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य 19 में verse 8. 8वीं आयत। And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. और उसे शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। And here it says, the raiment of Lord Jesus was white as light. और यहाँ पर मत्ती में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र रोशनी की मानिंद सफेद उजले हो गए। Then we turn to Revelation 10, हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय and we see verse 1. और पहली आयत को हम पढ़ेंगे। This is that glorified Christ, Christ coming in his deity. और ये मसीह अपनी खुदाइयत में आते हुए हैं। And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud. फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। And a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. और उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभों के समान थे। When you compare that with Matthew 17, जब आप इसकी तुलना करें मत्ती 17वें अध्याय से, the raiment with which he is clothed in, जिस वस्त्रों से वो पहने हुए हैं वहां पर, in chapter 10 is a cloud. 10वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं वो एक बादल है। And it is not a normal cloud. और ये कोई आम सामान्य बादल नहीं है, It is a theophany cloud. ये थियोफनी वाला बादल है। Can you say amen? क्या आप कह सकते हैं? And remember this, और याद रखिए इस बात को, he's coming with a cloth upon himself. अपने ऊपर एक वस्त्र को पहने हुए वो आ रहे हैं। But he's coming with an open book. लेकिन जब वो आ रहे हैं उसके हाथ में खुली किताब है। Then in Revelation 19, फिर प्रकाशित वाक्य 19 में, and to her, that is the bride, was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. और उसको यानी कि दुल्हन को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। It was granted to her. ये उसको दिया गया अधिकार। She didn't have it. उसके पास था नहीं। Somebody bought that wedding garment. किसी ने उस ब्याह के वस्त्र को खरीदा। Somebody brought it. कोई लेके आया। And she's given that garment और उसको वो वस्त्र दिए गए that she should be arrayed in that white linen. इस ताकि वो श्वेत मलमल में को ओढ़ ले और पहन ले। What is this white linen given to her? ये श्वेत मलमल जो उसे दिया गया वो क्या है? It is the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा है। It is the theophany ये थियोफनी है with which she is covered. जिससे कि वो ढकी हुई है। And this is not her righteousness. और ये उसकी धार्मिकता नहीं है। It is the righteousness of the Lord. ये प्रभु की धार्मिकता है। It is the righteousness of the saints. ये संतों की धार्मिकता है। And you know we don't have our own righteousness. और हम जानते हैं कि हमारी अपनी धार्मिकता नहीं है। The righteousness we have जो धार्मिकता हमारे पास है is the righteousness of God. वो खुदा की धार्मिकता है। God really bless you. खुदा आपको वास्तविकता में बड़ी बरकत दे। So the marriage of the Lamb is come. मेमने का ब्याह पहुंचा है। And his wife has made herself ready. और उसकी पत्नी ने
अपने आप को तैयार कर लिया है। And then in verse 9, और फिर 9वीं आयत में, and he said unto me, और उसने मुझसे कहा, Right, लिख, blessed are they मुबारक वो हैं which are called unto the marriage supper of the Lamb. जो कि मेमने के ब्याह के लिए बुलाए गए हैं। I'll not take lot of your time. मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। Turn with me to Matthew 25. मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय। I am going to see something. और हम कुछ बातों को देखेंगे। Before I go further, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, since most of us sitting here are believers, I believe, क्योंकि मैं देखता हूं यहाँ पर अधिकतम जो लोग यहाँ बैठे हैं वो विश्वासी हैं। we all know from the message हम सब संदेश के द्वारा जानते हैं there are three comings of Christ. मसीह की 3 आमदें हैं। His first coming उनकी पहली आमद to pay the price for his bride. कि अपनी दुल्हन के लिए दाम चुकाएं। Second coming, दूसरी आमद marriage, शादी के लिए and take his bride. और ताकि अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जाएं। Why has Brother Anugrah come to Meerut? भाई अनुग्रह मेरठ क्यों आए हैं? To take his bride. कि अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जाएं। Can you say amen? क्या आप कह सकते हैं? The first coming पहली आमद to pay the price. दाम को अदा करना। Second coming, दूसरी आमद marriage, शादी and take his bride. ताकि अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जाएं। Third coming, तीसरी आमद with his bride. अपनी दुल्हन के साथ। Revelations 19, प्रकाश वाक्य 19 on white horses श्वेत घोड़ों पे to rule and reign over this earth. ताकि राज करें और अधिकार करें इस पृथ्वी के ऊपर। So the mystery of his second coming सो उनकी दूसरी आमद का भी was put in a marriage. उसको एक शादी में डाला गया। If you can understand that marriage, अगर आप इस शादी को समझ पाएं, you'll understand that second coming, आप उस दूसरी आमद को समझ पाएंगे। you'll understand a seal, आप एक मोहर को समझ पाएंगे which is called the seventh seal. जिसे कहते हैं 7वीं मोहर। Can you say amen to that? आप इस बात के लिए आमीन कह सकते हैं? If there would be some new person, you just sit down, relax, and just listen. Don't worry, अगर कोई नया शख्स हो यहाँ पर, आप आराम से बैठे, रिलैक्स करें, चिंता ना करें and just hear it. और केवल सुनिए। And I know the Lord will talk with everybody something. और मैं विश्वास करता हूँ खुदा हर एक से, प्रत्येक से बातचीत करेंगे। Now, the marriage with which Lord Jesus is marrying his bride अब जिस शादी में प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन से शादी कर रहे हैं, is according to Jewish tradition and rules. उसमें आप पाएंगे यहूदी नियम और उसमें यहूदी रीतें पाई जाती हैं। I'll give you one very important point to think. मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दूंगा सोचने के लिए। Just 1 minute. God bless you, आप बड़ी बरकत दे। and I think you will understand it. मैं सोचता हूँ कि आप इसे समझेंगे। Amen. If you read the scripture carefully, अगर आपने ध्यानपूर्वक वचन को पढ़ा, like a brother and sister are married today, जैसे हमारे अजीज भाई और बहन की आज शादी हुई, I'll give you a big difference. Big difference. मैं आपको एक बड़ा फर्क दिखाऊंगा। Now, immediately after this ceremony, आप तुरंत इस क्रिया के बाद we will go to that hall or banquet hall or whatever, और हम जाएंगे यहाँ से उस बैंक्वेट हॉल में जो भी है, and enjoy a wedding supper. और ब्याह के भोज में हम आनंद लेंगे। Is that right? बात सही है? Then the bride and the bridegroom will be together. फिर दूल्हा दुल्हन एक साथ रहेंगे। Is that right? बात सही है? Where she changes from bride to a wife. जहाँ पर वो दुल्हन से पत्नी में बदल जाएंगे। Then comes their union. फिर आता है उनका मिलन, एक साथ आना, Because marriage is a union. क्योंकि शादी एक मिलन है। But you know something? लेकिन आप क्या कुछ जानते हैं? In a Jewish marriage, एक यहूदी शादी में this union happened first. ये मिलन, ये एक होना पहले हुआ।
The bride and the bridegroom were given a time together to become one first. पहले दूल्हा दुल्हन को समय दिया गया कि वो पहले एक हो जाएं। Now she is not just a bride. अब वो केवल मात्र दुल्हन नहीं है, Now she is a wife. अब वो एक पत्नी है। When you read Revelation 19, जब आप प्रकाशित वाक्य 19 पढ़ें, let us be glad and rejoice. आओ आनंदित और मगन हो, Marriage of the Lamb has come. मेमने का ब्याह पहुंचा है। His bride. हिंदी में तो दुल्हन लिखा हुआ है भैया, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में लिखा है वाइफ, पत्नी। It's not bride. दुल्हन नहीं है, His wife. उसकी पत्नी ने, His wife had made herself ready. उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। Then comes the next verse. फिर आती है अगली आयत, Let us go to that wedding supper. आओ हम ब्याह के भोज में जाएं, And blessed are those who are called. और मुबारक वो हैं जो बुलाए गए हैं। So when you see the marriage of the Lamb, तो जब आप मेमने का ब्याह देखें, the Lamb unites with his bride first. मेमना अपनी दुल्हन के साथ पहले एक होते हैं, Then comes the wedding supper. और उसके बाद एक होने के बाद ब्याह का भोज आता है। We have opposite. हमारे पास तो बिल्कुल विपरीत होता है, We do the opposite. हमारे यहाँ विपरीत होता है। But the marriage of the Lamb isn't following our traditions. Marriage of the Lamb is not following our traditions. मेमने का जो ब्याह है वो हमारे रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हो रहा। I think you're getting it. तो क्या समझ पा रहे होंगे? It is following the Jewish tradition. ये यहूदी रीति के अनुसार है। I preached it somewhere. मैंने इसको कहीं प्रचार Sorry. किया है। And I want to just show you something. Can you pick it up, brother? God bless you. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। There were 7 steps in a Jewish marriage. एक यहूदी शादी में 7 चरण होते हैं। I'll talk about these steps one by one. एक एक करके मैं आपके सामने इन चरणों का बखान करूंगा, And how the second coming of Christ is hidden in these 7 steps. और कैसे दूसरी आमद इन 7 चरणों में छुपी है। People think लोग सोचते हैं he'll come in the air कि वो हवा में आएंगे and we are going to be caught up. और हम यहाँ से उठा लिए जाएंगे। That's the second coming. ये उनकी दूसरी आमद है। That's what the denominations taught us. यही वो चीज है जो संस्थाओं ने हमें सिखाई। But that, according to the scriptures, is not his second coming. लेकिन वचन के अनुसार ये उनकी दूसरी आमद नहीं है। His second coming is a marriage. उनकी दूसरी आमद एक शादी है। He comes first. पहले वो आते हैं, And I'll show you. मैं आपको दिखाऊंगा He came with her wedding garment. कि वो आए दुल्हन के ब्याह के वस्त्र के साथ, And she wore that. और उसने उसे पहना। What the bride of Christ will wear, no man on earth can make it. और जो खुदावंद की दुल्हन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन पहनेगी, वो कोई मनुष्य इस पृथ्वी पे बना नहीं सकता। No handiwork can make that garment. कोई हस्तकला उस वस्त्र को बना नहीं सकती। Nobody can put faith and virtue and knowledge and temperance and patience by earthly materials. पृथ्वी के पदार्थों के द्वारा कोई उसमें विश्वास, सद्गुण, भक्ति, ये तमाम सातों गुण डाल नहीं सकती। These elements are heavenly. ये तमाम तत्व स्वर्गीय है। It has to be prepared by a heavenly person. जरूरी है कि ये तमाम सामग्रियां जो हैं वो तैयार की जाए किसी स्वर्गीय के द्वारा। And he didn't prepare it by hands. और उसने हाथों के द्वारा उसको नहीं बनाया, He prepared it by his spoken word. अपने मुंह से बोले गए वचन के द्वारा बनाया। And when the garment was ready, और जब वस्त्र तैयार हुआ, he brought it down वो उसको नीचे लेके आ गए that his bride can wear it. कि उसकी दुल्हन से अब पहन सके। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। Ephesians chapter 5. इफिसियों उसका 5वां अध्याय, I want to show you the scripture मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूं so that we can understand something. ताकि आप कुछ बातों को समझ सकें। Ephesians. Yeah, here is Ephesians chapter 5.
Verse 25 onwards. 25वें आयत से आगे, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। Who? कौन? Christ. मसीह। He is washing his church. वो अपनी कलीसिया को धो रहे हैं। Verse 27. 27वें, That he might present it to himself a glorious church. कि अपने लिए वो उसको प्रस्तुत कर सके एक महिमायुक्त कलीसिया के तौर पर। मैं इसको हिंदी बाइबल से नहीं पढ़ रहा, लेकिन वैसे पढ़ रहा हूं जैसे कि इंग्लिश बाइबल में लिखा है। Today what happened? आज क्या हुआ? Brother Anugrah was standing here, भाई अनुग्रह यहाँ खड़े थे, and from that gate came Brother Moses leading the bride. और उस फाटक से, उस द्वार से भाई मोसेस अपनी बेटी यानी कि दुल्हन को लेके आए। But in this case, लेकिन इस केस में Christ who is standing here, मसीह जो यहाँ खड़े हैं, he is presenting her to himself. वो अपने लिए उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। He is the presenter. वो ही प्रस्तुत करने वाले हैं। He is the one who made her ready. वो ही वो है जिसने कि उसको तैयार भी किया। She couldn't get ready without him coming. उनकी आमद के बगैर, उनके आने के बगैर वो तैयार नहीं हो सकती। You see how important it is to understand that coming. आप देखिए कितना जरूरी है कि उस आमद को समझे। Without that coming, उस आमद के बगैर she cannot be ready. वो तैयार हो ही नहीं सकती। She cannot have that garment. उसके पास वो वस्त्र हो ही नहीं सकते। And he didn't went to every denomination. और वो किसी डिनोमिनेशन में नहीं गए। He's not bringing that wedding garment to the headlord of Revelation 17. प्रकाशिका के 17 की वैश्या के लिए वो वस्त्र नहीं बना रहे। He has not brought those garments for those prostitutes, उन वेश्याओं के लिए वो वस्त्र लेके नहीं आए। but he has brought it for a bride. In Revelation 18, प्रकाशिका के 18 में come out of Babylon, बालों से निकल के बाहर आ जाओ। come out of her, my people. उसके बीच से बाहर आ जाओ। And in chapter 19, और 19वां अध्याय में marriage of the Lamb has come. लेने का ब्याह पहुंचा है। Why has the marriage come? ब्याह क्यों पहुंचा है? Because in chapter 18, क्योंकि 18वें अध्याय में she has been called out. बात बता दी गई है। She has been washed वो धोती जा चुकी है। by the waters of the word. वचन के पानी के द्वारा She has been given the theophany robe. उसे थियोफनी वाली वस्त्र दिया गया है। She has been given those virtues उसको वो गुण दिए गए हैं by he himself, खुदा स्वयं के द्वारा, that he might present her to himself. कि वो उसको अपने लिए प्रस्तुत कर सके। Nobody is presenting her to him. कोई उसको प्रस्तुत नहीं कर रहा उसको। He is presenting her to himself. वो उस दुल्हन को अपने लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। Amen. You know, there's a revelation here. आपको मालूम यहाँ पर एक प्रकाश छिपा है। He is the Father वो पिता है and he is the bridegroom. In one relation, एक संबंध में there's a mystery hiding here. यहाँ पर एक भेद छिपा है। That is the mystery of the Trinity, not of persons, but of offices. और इसमें आप पाएंगे यहाँ भेद छिपा है त्रिएकता, लक्ष्यों का नहीं लेकिन ओहदों का। I'm saying not of persons. त्रिएकता शख्सियतों का नहीं है लेकिन ओहदों का है। Not Father, Son, and Holy Ghost. ऐसा नहीं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन अलग। That's nonsense. ये तो बकवास है। That's not in the Bible. ये बाइबल में नहीं है। God is one personality. खुदा एक शख्सियत है। And if somebody is confused, get down on your knees and pray and ask God to clear up your mind. और अगर कोई स्पष्ट में कहूँगा कि अपने घुटनों में आए खुदा से कहे प्रभु इसको मेरे लिए स्पष्ट कर दे। One day a Jew met Brother Branham. एक दिन एक यहूदी की मुलाकात भाई ब्रैनम से। I know the Jew said, और आकर के यहूदी ने कहा, you people have cut one God in 3 pieces. तुम लोगों ने एक खुदा को 3 टुकड़े में बांट दिया। Then Brother Branham said, तो भाई ब्रैनम ने कहा, no, I have not done that. नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया।
You made him one Father, one Son, and Holy Ghost. आपने उसे एक को पिता बना दिया, एक को पुत्र बना दिया, एक को पवित्र आत्मा बना दिया। When the Bible says, "Hear, O Israel, the Lord thy God is one God." बाइबल फरमाती है, इस्राएल सुन, तेरा खुदा एक ही खुदा है। He is one personality, एक शख्सियत है, but he had offices. लेकिन उसके अपने कार्य औहदे हैं। I am the husband of my wife. मैं अपना एक पौधा बताता हूँ, मैं अपनी पत्नी का पति हूँ। I am the father of my children. एक दूसरा औहदा मेरा है, मैं अपने बच्चों का पिता हूँ। I am a doctor to my patients. अपने मरीजों के लिए मैं डॉक्टर हूँ। I am a pastor to my church. अपनी कलीसिया का मैं पास्टर हूँ। That doesn't make me 4 and 5. तो ये चीज मुझे 4 या 5 नहीं बना देती। I am still that one person, मैं अभी भी वो एक शख्स हूँ, but I have these various offices. लेकिन मेरे विभिन्न कार्य क्षेत्र हैं और So God is one. तो खुदा एक है। He is the husband of the church, कलीसिया का वो पति है, but which church? लेकिन कौन सी Which कलीसिया has come out of his loins. जो कि उसकी शुभ से बाहर आई है। So he is the presenter, तो वही प्रस्तुत करने वाला है and he is the one who's married. और वही वो है जो कि शादी भी कर रहा है। One thing you must have understood, एक चीज तो आप समझ गए होंगे, there can be no marriage without him. कोई भी शादी उनके बगैर नहीं हो सकती है। And that second coming, और वो दूसरी है, उसकी शादी है। ये बहुत जरूरी था that he comes down, कि वो नीचे उतर के आए। क्या आप आमीन कह सकते हैं? Amen. और फिर वो आकर के अपनी दुल्हन से, अपनी कलीसिया से शादी करते हैं। And when that marriage is finished, और जब वो शादी संपन्न होती है, then they go to the wedding supper. फिर वो ब्याह के भोज में जाते हैं। What is the wedding supper? ब्याह का भोज क्या है? Going in a rapture. Amen. Wedding supper. ब्याह के भोज Amen. और 3.5 years, 3.5 साल के लिए। Can you say that? Amen. Amen. बड़ी बरकत है। Don't worry about these things. इन चीजों से आप परेशान ना हो। Amen. I will not read it. मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, but I'll just mention it. लेकिन मैं इसका केवल उल्लेख दूंगा। In Matthew 25, मत्ती 25 में he gives a parable. वो एक दृष्टांत देते हैं। And the parable says, "Then shall the kingdom of heaven be like 10 virgins." और वो दृष्टांत में कहते हैं, खुदा का राज 10 कुंवारियों की मानिंद होगा। 5 were wise, 5 अकलमंद थी, and 5 were foolish. और 5 मूर्ख थी। 5 took oil in their lamps. 5 ने अपने दीपकों में तेल लिया, but 5 didn't take oil. लेकिन 5 जो थी, उन्होंने तेल नहीं लिया। And while the bridegroom tarried, और जब दूल्हे की आमद में देरी हुई, it's written there in the Bible. ये बाइबल में लिखा है, they all slumbered and slept. वो सब खुमारी में आए और सो गए। Is that the scripture? आमीन। And at midnight there was a cry made. आधी रात को एक धूप मची। Behold, the bridegroom cometh. देखो, दूल्हा आता है। Amen. Go out to meet him. उससे बाहर मिलने को जाओ। Then those who were wise, फिर वो जो कि अकलमंद थे, they rose and trimmed their lamps. वो उठे और उन्होंने अपनी बातियों को ठीक किया, and they lit it up, और उसको जलाया, and got ready to move, और तैयार हो गए आगे बढ़ने के लिए। And the foolish realized, और मूर्खों ने इस बात को समझा, we are not having that oil. हमारे पास वो तेल नहीं है। Is that right? हाँ, सही है। And they asked the wise, फिर उन्होंने अकलमंदों से पूछा, Please, can you give us some of your oil? क्या आप अपने तेल में से कुछ हमें दे सकती हैं? The wise answered, अकलमंदों ने जवाब दिया, We have just enough for ourselves. हमारे पास केवल अपने लिए ही काफी है। You go and buy it from the sellers. तुम जाकर के दुकानदारों से, बेचने वालों से खरीद लो। The Bible says, बाइबल बताती है, when the foolish went to buy that oil, जब मूर्ख उस तेल को खरीदने गई, at the same time the groom came. उसी समय दूल्हा आ गया। And the wise virgins entered with him in the chamber. और उस समय जो अकलमंद कुंवारियां थी, वो दूल्हे के साथ उस कक्ष में चली गई। And the door was shut. और द्वार बंद हो गया। Then the foolish came. फिर मूर्ख आए। And they also knocked the door. और उन्होंने भी जाके खटखटाया दरवाजे पे।
फिर उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। And then he said, you prepared in an hour when you know not the Son of Man cometh. Prepare, for you don't know what hour the Son of Man cometh. तुम तैयार हो रहे हो उस समय, उस घड़ी में जिस समय कोई जानता नहीं कि मनुष्य का पुत्र कब आएगा। So get ready for that. तो इसलिए तुम तैयार हो जाओ। Now that was the parable. अब ये दृष्टांत था, And that parable is connected to a marriage. और ये दृष्टांत जुड़ा है एक शादी के साथ। It is connected to his second coming. ये जुड़ा है उसकी Amen. Now to understand it, अब इसको समझने के लिए you need to understand the 7 important steps. आपको जरूरी है कि आप वो 7 बहुत ही महत्वपूर्ण चरण समझें। 7 steps of a Jewish marriage. एक यहूदी शादी के 7 चरण। Now listen to it. अब इसको सुनिए। The first step was called ketubah. पहला चरण था, उसका नाम था कतूबा। Now these are the Jewish words. अब ये यहूदी शब्द है। And ketubah means signing of a marriage contract. और कतूबा का अर्थ है शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। Before a marriage is performed, इससे पहले कि शादी की जाए, the marriage contract is signed. शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जाता है। You must have noticed. आपने देखा होगा In our case, in in our cases when the weddings have taken place, हमारे मामलों में जब हमारी शादियां हमारे बीच में हुई, the minister first performs the ceremony, पहले जो सेवक है वो शादी को करता है, and then the bride and the bridegroom sign on the register. फिर उसके बाद जो दूल्हा और दुल्हन है वो जा करके रजिस्टर में साइन करते हैं। But in a Jewish marriage, लेकिन एक यहूदी शादी में it never was like this. कभी भी ऐसा नहीं था। The first thing they did पहला चीज जो उन्होंने करी was the signing of the marriage contract. वो था एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। And now, in this case of the 10 virgins, अब इन 10 कुंवारियों के मामले में why had the bridegroom delayed? दूल्हे ने आने में देर क्यों कर दी? The delay was because he was finishing the signing of the contract. ये इसलिए हुई क्योंकि वो पूरा कर रहे थे, खत्म कर रहे थे उस हस्ताक्षर वाले कॉन्ट्रैक्ट को। नहीं भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे थे। he was signing that contract, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे थे and because of that there is a delay, और उसकी वजह से एक देरी हो गई, because of which he couldn't come. जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए। Now brothers and sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, you know according to the message, आप संदेश के अनुसार जानते हैं Christ is our bridegroom, मसीह हमारे दूल्हा है, our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह, he died on the cross, और वो क्रूस पे मरे and he made a covenant with us. और हमारे साथ एक वाचा बांधी। Is that right? Amen. And that covenant which was written with us और जो वाचा हमारे साथ बांधी गई was written in a book, वो एक किताब Amen. में लिखी गई and that book was sealed with 7 seals. और वो किताब 7 मोहरों में लिखी गई थी And he couldn't come. और वो आ नहीं सकते थे। He had to wait in heaven उसे स्वर्ग में इंतजार करना था till every name had been dipped under the blood. Amen. Hallelujah! He was doing an intercessory work वो एक मध्यस्थ का Amen. काम कर रहे थे and finishing that work in heaven. और उस कार्य को स्वर्ग में समाप्त कर रहे थे। Is that right? ये बात सही है। And when he's finishing that work in heaven, और जब स्वर्ग में उस काम को वो समाप्त कर रहे थे, after finishing it, उसको समाप्त करने के बाद he took that contract, उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया, ripped apart the 7 seals, 7 मोहरों को तोड़ दिया, because inside that contract, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर it was not just his name, केवल उनका ही नाम नहीं था, it was the Lamb's book of life, ये बेटे के जीवन की पुस्तक थी, but not just his name, लेकिन केवल मात्र उनका नाम नहीं था। it contained the name of every member of his church. Amen. इसमें हर एक सदस्य का नाम लिखा था, It contained the names of every member of the bride. दुल्हन के हर एक सदस्य का नाम लिखा हुआ था। He was finishing that work in heaven. वो उस कार्य को स्वर्ग में समाप्त कर रहे थे। Can you say amen? Amen. He was finishing the marriage contract. वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त पूरा कर रहे थे। And remember, और याद रखिए, signing is done by 2 people. हस्ताक्षर 2 लोगों के बीच में होता है। One is the signature of the bridegroom, एक तो दूल्हे का सिग्नेचर हस्ताक्षर है and the second is the signature of the bride. और दूसरा हस्ताक्षर दुल्हन का होता है। Amen. आमीन। One is his signature, एक तो उनका हस्ताक्षर है and one is your signature. और एक आपका हस्ताक्षर है That you have come in mutual agreement
He handed over the contract. उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को सौंपा And it didn't contain your old name. और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका पुराना नाम नहीं था, It was your new name, यह नया नाम था, which was predestinated before the foundation of the world, जो कि जगत की नींव रखने से पहले ठहराया गया था, which was put in the Lamb's Book of Life. जिसको कि मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा गया था। What the prophet said, अभी ने क्या कहा? he gave you your new name, उन्होंने आपको आपका नया नाम दिया, your marriage certificate. आपका शादी का विवाह का प्रमाण पत्र, Your certificate was that name, आपका प्रमाण पत्र वो नाम था, a new name by which you are called. एक नया नाम जिसके द्वारा आप बुलाए जाते हैं। You are called Mrs. Lord Jesus Christ. श्रीमती प्रभु यीशु मसीह। Today, Sister Alicia lost her old name. आज बहन अलीशा ने अपने पुराने नाम को खो दिया, Now she's known by the name of her bridegroom. अब अपने दूल्हे के नाम से वो पहचानी जाती है। Today we don't have our names. आज हमारे अपने नाम नहीं है, We are called Mrs. Lord Jesus Christ. हमें श्रीमती प्रभु यीशु मसीह कहा जाता है। We are given a new name. हमें एक नया नाम दिया गया है, He finished up with the old names. पुराने नामों को समाप्त कर दिया And he's coming with that book. और उस किताब के साथ आ रहे हैं, He's coming with that contract. वो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ रहे हैं। Because of that contract, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से there was a delay. एक देरी हुई। Ketubah कतूबा was the reason वो था वो कारण that the bridegroom delayed his coming. कि दूल्हे ने अपनी आमद में देर कर दी। He was finishing the intercessory work. वो उस मध्यस्थ के कार्य को समाप्त कर रहे थे। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? But when he came, लेकिन जब वो आए, the wise had oil अकलमंद के पास तेल था and the foolish didn't have it. और मूर्खों के पास नहीं था। Let me talk about the 7 steps first. पहले मैं 7 चरणों के बारे में बात कर रहा हूँ। The first step, पहला चरण Ketubah, कतूबा, signing of a marriage contract. एक विवाह के अनुबंध का हस्ताक्षर होना। Step 2, दूसरा चरण Badekin. बादेकन, These are the Jewish words. ये यहूदी शब्द हैं। Under Badekin, बादेकन के नीचे the groom veiled his bride. दूल्हे ने अपनी दुल्हन के ऊपर वेल डाला। If you remember, अगर आपको याद है, in the case of Isaac and Rebekah, इज़हाक और रिबका के मामले में when the camels approached that place, जब वो ऊंट जिस पे रिबका बैठी थी उस जगह के करीब पहुंचे and Isaac was coming in the field, और इज़हाक खेत में चलता हुआ आ रहा है she, that is Rebekah, asked Eliezer, who is this man? और रिबका ने एलियाजर से पूछा, ये मनुष्य जो खेत में चलता आ रहा है ये कौन है? Eliezer said, he is your Lord. एलियाजर ने कहा, ये तुम्हारा स्वामी है। Amen. Is that the scripture? ये वचन है। What did she do next? अगली चीज उसने क्या She किया? put a veil over her head. उसने अपने मुंह के सामने चादर को डाला। What does this veil mean? इस चादर का अर्थ क्या है? Now I don't have my head. अब मेरे पास अपना सर नहीं है, Now he is my head. अब ये मेरा सर है। I don't have my thinking. मेरे पास अपनी सोच नहीं है। Now he is my mind. अब God bless you, अब ये मेरा मन है, मेरा बुद्धि है, He will do the thinking for me. मेरे लिए ये सोच विचार करेंगे। I think you're understanding it? सोच वाली आप समझ रहे होंगे। Badekin, बात देखें, veiling of the bride. दुल्हन पे वेल डालना। Step 3 तीसरा चरण is called huppah. इसे कहते हैं हुप्पा। What is huppah? हुप्पा क्या है? Huppah is a tent हुप्पा एक तंबू है where the marriage is performed. जहां पर शादी संपन्न होती है पूरे। Amen. Amen. I think some people are already catching what I'm saying. मैं सोचता हूं कुछ लोग पहले से पकड़ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। Huppah, हुप्पा where the bride, the bridegroom, and their fathers and mothers and just some close ones with the priest, whoever it is, come in the tent. जहां पे आप पाएंगे इस हुप्पा में क्या होता है कि उस तंबू में दूल्हा दुल्हन और जो करीबी यानी कि माता पिता जो रिश्तेदार हैं उस याजक जो कि उस शादी को पढ़ने वाला है उसके साथ पहुंचते हैं। Everybody doesn't go there. हर एक कोई उस तंबू में नहीं जाता।
It's only the ones who are married. ये केवल वो हैं जिनकी शादी होती है। That is not a public show. God bless you. ये कोई सार्वजनिक चीज नहीं है। I think you're understanding it. सुन तो क्या समझ रहे हैं? And it is there that the marriage ceremony is performed. और ये वो जगह है जहाँ पर शादी की क्रिया की जाती है। Chuppah, खुब्बा, a tent. एक तंबू, एक महल। And then comes the fourth step, फिर आता है चौथा चरण, the marriage ceremony. शादी की क्रिया। There are two words for that. इसके दो शब्द हैं, Kiddushin, किदुशी, which is a wedding ceremony, जिसे विवाह की क्रिया कहते हैं, and the ring exchange ceremony, और अंगूठी के बदलने वाली जो क्रिया है, which was called erusi. जिसे कहते थे एरूसी। Erusin. एरूसी, Erusin is the ring exchange ceremony. एरूसी जो है ये अंगूठियों के बदलने वाली क्रिया है। And it is written there, और वहां पे लिखा है, they put rings on the right index finger. और वहां लिखा है कि वो दाहिने हाथ की इंडेक्स वाली उंगली में वहां पे उसको पहनाते थे। And the bride stood on the right side. और दुल्हन दाहिनी ओर खड़ी होती थी। If you read Psalm 45, अगर आप ज़बूर 45 पढ़ें, the queen is standing on the right side of the groom, the king. जो दुल्हन है, जो रानी है, राजा थे, दाहिनी ओर खड़ी है। I think you understanding it? इसको तो समझ में आ गया? The ceremony. क्रिया, Kiddushin Erusin. एलुशी, एरूसी, And with that there's another word, और उसके साथ फिर एक और शब्द है, Hakafot. हकाफो। What is that? ये क्या है? The bride went around the bridegroom 7 times. दुल्हन जो है दूल्हे के चारों ओर 7 चक्कर लगाती है। Now you know we have that in our Indian tradition. और हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी रीति रिवाज में इस प्रकार से शादी होती थी। But there is an original one, लेकिन एक मूल शादी है, which was the Jewish marriage. जो कि यहूदी तरीका था उस शादी का, And in that, the bride took 7 circles. जिसमें दुल्हन दूल्हे के 7 चक्कर लगाती थी। I hope you're understanding it. सोचो क्या समझ रहे होंगे? I'll just name it. Hakafot. हकाफो मैं नाम ले रहा हूँ। And then the next step came, और फिर उसके बाद अगला चरण आया, Shiva Barachot. शेरा Shiva बराखोत। Shiva means 7. शेवा का मतलब होता है 7, Barachot means blessings. और बराखोत मतलब बरकतें। 7 blessings 7 बरकतें were pronounced at the marriage. शादी के समय बोली जाती थी। I think you're understanding it. सोचो क्या समझ रहे होंगे? Then came the 6th step. फिर आया छठा चरण, Yehud. यहूद। What is it? यहूद क्या है? Now the bride and the bridegroom were put in a room to have a private time. अब दूल्हा दुल्हन को एक कमरे में, कक्ष में डाला जाता था, भेजा जाता था, जहां पे वो अपना निजी समय गुजारते थे। When they became one. वो जगह जहां पे वो एक तन होते हैं। When they had become one, जब वो एक तन हो जाते हैं, an announcement was made तब एक उद्घोषणा की जाती थी by the friend of the bridegroom. दूल्हे के दोस्त के द्वारा, Behold, they are one. देखो अब वो दोनों एक तन हो चुके हैं। Now let us be glad अब आप आनंदित हो and rejoice. और मगन हो, And let's go to the ceremony. और आओ हम उस भोज में आगे जाएं। And that was the 7th step. और ये था 7वां चरण, Wedding supper, ब्याह का भोज, also called Seudat Mitzvah. जिसे कहते थे शिवदा मित्सवा। The 7th step, 7वां चरण, the wedding supper. ब्याह का भोज। Now our Lord अब हमारे प्रभु is coming through these 7 steps. इन 7 चरणों में होते जा रहे हैं। In that second coming, उस दूसरी आमद में, if you can catch that mystery, अगर आप इस भेद को पकड़ पाए, and what happened? और क्या हुआ? The wise and the foolish virgins were together, अकलमंद और मूर्ख कुमारियां एक साथ थी, but because there was a delay. लेकिन क्योंकि देरी हो गई, When was the delay? देरी कहाँ हुई? He was finishing the redemptive work in heaven, वो छुटकारे के काम को स्वर्ग में समाप्त कर रहे थे, and then he opened the book और तब उन्होंने किताब को खोला and came down with an open book. और खुली किताब के साथ नीचे आ गए। And what did he find? उन्होंने क्या पाया? 5 had oil 5 के पास तेल था and 5 didn't have oil. और 5 के पास तेल नहीं था।
These 10 virgins went together. ये 10 कुंवारी एक साथ गई। Are you with me till now? क्या तुम मेरे साथ हैं? They fellowship together. एक साथ इन्होंने संगति की, They lived together. एक साथ रहे। But what happened? लेकिन क्या हुआ? When midnight there came a cry. आधी रात को धूप मची। Behold, the bridegroom cometh. देखो दूल्हा आता है। It is at that time यह वो समय they separated. ये जुदा हो गए, अलग हो गए। A separation came. एक अलग आ गई। The reason of separation. अलग का कारण These 5 had oil, इन 5 के पास जो अगल में तेल था, but these 5 didn't have oil. लेकिन 5 जो पूरब थी के पास तेल नहीं था। The Holy Ghost. इसे तो तेल क्या है? पवित्र आत्मा। Are you understanding till now? क्या आप समझ पा रहे हैं? So before the tent could come, सो इससे पहले वो तंबू वाली वाला चरण आ पाता, before that stage could arrive, इससे पहले कि वो स्थिति आ पाती, the 5 foolish had already gone. 5 मूर्ख पहले से जा चुकी थी। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप। Did a prophet see a tent vision? क्या एक नबी ने तंबू के दर्शन को देखा? Did he say it's not a public show? क्या उन्होंने कहा कि एक पब्लिक शो नहीं है? Is there a tent for the marriage of the bride and the bridegroom? क्या दूल्हा दुल्हन के लिए कोई तंबू है? If you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ें, Isaac took Rebekah इसहाक ने रिबका को लिया to his mother's tent. और लेकर के अपने माँ के तंबू में चला गया। And that is where the marriage was finished. और ये वो जगह थी जहाँ पे शादी संपन्न हुई। That's what the scripture says. बाइबल बताती है। So what is that tent? तो वो तंबू क्या है? It's a place वो एक स्थान है where the marriage is finished. जहाँ पे विवाह संपन्न होता है। But before that stage could come, लेकिन इससे पहले कि वो तंबू वाली स्थिति आ पाती, what had happened? क्या हुआ? The foolish missed that. मूर्खों ने इसको मिस कर दिया। They couldn't understand that they needed oil for that. उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि उन्हें इस चीज के लिए तेल की जरूरत है। They cannot complete the next step. वो अगला चरण पूरा कर ही नहीं सकते। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? They couldn't advance in that marriage. वो शादी में आगे बढ़ नहीं पाए। Shall I say something today? क्या मैं कुछ कहूँ आज? They couldn't advance in that coming. उस आमद में वो आगे बढ़ नहीं पाए। The reason, कारण their lamps were lit in the beginning. आरंभ में शुरुआत में तो उनके दीपों में रोशनी थी। They all started with oil. वैसे वो सब के सब तेल के साथ चालू हुए। But right at the time when the marriage came, लेकिन ठीक वो समय जब शादी का वक्त आया, what happened? क्या हुआ? The light of the foolish went out. मूर्खों के दीपक की रोशनी खत्म हो गई। They needed now some extra oil अब उन्हें कुछ एक्स्ट्रा तेल की जरूरत थी, with which they can come to that tent. जिसके द्वारा कि वो उस तंबू तक पहुंच सके। But they didn't have that oil. लेकिन उनके पास वो तेल था नहीं। When the revival began in this age, इस युग में बेदारी चालू हुई। everybody was a part of that revival. हर एक कोई उस बेदारी का हिस्सा था। Everybody was a part of the Pentecostal revival. हर एक कोई पेंटिकॉस्ट बेदारी का हिस्सा था। But what happened? लेकिन क्या हुआ? The lamps burnt out. उनके बातियां, उनके दीपक बुझ गए। But when Revelation 10 happened, लेकिन प्रकाशित होके 10 हटा। when the mighty angel came down, परमेश्वर दूत चला गया। when the bridegroom came with the book, जब दूल्हा किताब के साथ आया, when he came back with the marriage contract, वो नीचे लेके आया शादी के अनुबंध के साथ। when he came back with the book of redemption, जब छुटकारे की किताब के साथ वो नीचे आया, what did he find? उसने क्या पाया? There are many who don't have oil, बहुत सारे जिनके पास तेल नहीं है, and they are going to buy oil. और वो जा रहे थे तेल को खरीदने के लिए। What did the prophet say? नबी ने क्या कहा? There is a revival in denominations. डिनोमिनेशन में एक बेदारी है। We need oil, we need oil. हमें तेल की जरूरत है, हमें तेल की जरूरत है। He said at that same time, नबी ने कहा उसी समय when they went to buy oil, जब वो तेल को खरीदने को गई, the bridegroom came, दूल्हा आ गया and in went the bride. और तुरंत अंदर उसके साथ चली गई। Where did she go? वो कहाँ चली गई? Not to the wedding supper, ब्याह के भवन में नहीं, into the marriage. शादी में प्रवेश कर गई। You see, when we go to heaven, आप देखिए हम स्वर्ग जाएंगे, when our bodies are changed, जब हमारी देह बदल जाएगी, we are going to the wedding supper. अब हम ब्याह के भवन में जा रहे हैं। But the marriage is performed here. लेकिन
That is the biggest mystery. ये सबसे बड़ा भेद है। What happens in that marriage? वो शादी में क्या होता है? The bridegroom and the bride becomes one. दूल्हा और दुल्हन एक हो जाते हैं। Then what happened? फिर क्या हुआ? When the 10th vision was fulfilled, जब तंबू का दर्शन पूरा हुआ, which is the third pole, जो कि तीसरा खिंचाव है, which was the opening of the 7 seals, जो कि 7 कोरों का खुलना था। Brother Branham stood at the pulpit अब बेना मंच पे खड़े हुए, as the priest, याजक के रूप में, as the minister, सेवक के रूप में, to preach that marriage. ताकि उस शादी को प्रचारे। Christ मसीह and his bride. और उनकी दुल्हन। And the first seal he said, और पहली बार उन्होंने कहा, I'll not call you church, मैं तुम्हें कलीसिया नहीं कहूंगा, I'll call you bride. मैं तुम्हें दुल्हन कहूंगा। He was performing a marriage. वो एक शादी को कर रहे थे, And what was happening in the marriage? और शादी में क्या हो रहा था? 7 days, 7 दिन, 7 rounds, 7 चक्कर काटे जा रहे थे, 7 blessings, 7 बरकतें, Shiva Barakot, शिवा को, 7 thunders, 7 बरकतें शब्द, 7 voices 7 आवाजें spoken in that tent उस तंबू में बोली गई, between the bridegroom and the bride, दूल्हा और दुल्हन के बीच में, so that they become one. ताकि वो एक हो सके। And those who are a part of that tent, और वे जो कि उस तंबू का हिस्सा थे, not denominations, डिनोमिनेशन नहीं, but the elect bride. लेकिन चुनी हुई दुल्हन। What happened in the next step? अगले चरण में क्या हुआ? Yaakov. याकूब, And for the last so many years, और पिछले कई सालों से he is with his bride. वो अपनी दुल्हन के साथ है। The king Theophany राजा थियोफनी is with his bride. अपनी दुल्हन के साथ है। The invisible union of the bride of Christ. अदृश्य मिलाप मसीह की दुल्हन के साथ Christ और मसीह के बीच में और दुल्हन के बीच में becoming one. एक होते हुए, Becoming one. एक होते हुए She is becoming him. दुल्हन दूल्हे के साथ एक होकर वो बन रही है। And I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, in 1964, 1964 में Brother Branham was also the friend of the bridegroom. भाई ब्रैनम जो थे वो दूल्हे के दोस्त भी थे। He announced उन्होंने घोषणा की in the message proving his word, उस संदेश में जिसका कि शीर्षक है अपने वचन को साबित करना। they are one. अब वो दोनों एक हो चुके हैं। The marriage happens here. शादी यहाँ घटती है, They are one. एक हो चुके हैं। Is that right? हाँ, सही है। Now what is the rapture? अब रैप्चर क्या है? Going to the wedding supper. यहाँ के भोज में जाना। Then if you are in that marriage, तो अगर आप उस शादी में हैं, you are in that coming. आप उस आमद में हैं। He, the king Theophany, वो कि राजा थियोफनी है, uniting with his bride. अपनी दुल्हन के साथ एक होते हैं। Yehud. याकूब, That's the stage we are living in today. ये है वो स्थिति जिसमें मैं और आप आज रह रहे हैं। Soon, शीघ्र the wedding supper. क्या का भोज, The 7th and the last step. सातवां और अंतिम चरण, When our bodies are changed जब हमारी देह बदल जाती है and we meet him in the air और हम हवा में उससे मिलते हैं and we go to the wedding और supper. हम ब्याह के भोज में जाते हैं। But before that, लेकिन उससे पहले the union takes place here. मिलन यहाँ पर घटता है। You see, brother, sister, भाई बहनों देखिए, only the wise virgins will understand this. केवल अकलमंद कुमारियां इस बात को समझेंगी। Where did the separation come? अलग भी कहाँ पे आई? In the marriage. शादी के बाद, शादी के समय। मुझे मालूम नहीं कितनों को याद है, सिर्फ कुछ अकल मैं ताजा कर रहा हूं आपकी। जब 2024 खत्म हो रहा था, इसी साल का 31 आया था, पिछले साल का, जब हम इस साल में घुस रहे थे, मैंने अपने चर्च में एक बात बोली थी, कई लोग कनेक्टेड होते तो सुनते थे, कि देखिए अब हम 2024 से 2025 में घुस रहे हैं, बोला। और मैंने एक चीज बोली थी कि अब हम मत्ती 24 से मत्ती 25 में घुस रहे हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है कि साल मत्ती 25 घटा भी हो। कोई बात समझ में आ रही है? We are not judging anybody, हम किसी का न्याय नहीं कर रहे, but remember this one thing.
लेकिन इस एक चीज को याद रखिए, I am noticing carefully the spiritual events this year. मैं ध्यान से देख रहा था वो आत्मिक घटनाएं जो कि इस साल घट रही थी। I don't know how many are with me, मैं नहीं जानता कितने मेरे साथ हैं, but I have noticed. लेकिन मैंने देखा इसको, And I'm clearly seeing और मैं स्पष्ट रीति से देख रहा हूँ two kinds of spirits दो किस्म की आत्माएं going like this. इस प्रकार से चलती हैं। You can see it. आप इसे देख सकते हैं। And I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। That oil was personal. ये तेल व्यक्तिगत था। Amen. The oil I have, जो तेल मेरे पास है, I can't give to you. मैं आपको नहीं दे सकता। The oil you have, जो तेल आपके पास है, you can't give it to me. आप उसे मुझे नहीं दे सकते। No, you can't. नहीं कर सकते। Everybody has to have his or her own oil. हर एक किसी के पास अपना निजी तेल होना जरूरी है। Without that oil, बगैर उस तेल के you cannot go to the next step of the marriage. आप शादी के अगले चरण में जा ही नहीं सकते। Confusion, third pole. अब का दर्शन तीसरा खिंचाव, The only statements. ये केवल वाक्य है। But you don't have oil. लेकिन अगर आपके पास तेल नहीं है, You can't understand them. आप इन्हें समझ नहीं सकते, You can't. नहीं समझ सकते। And because of that, और उसकी वजह से there is a fall. एक गिरावट है, There is a falling away. एक गिरना है। I know मैं जानता हूँ many listeners would be thinking, कई सुनने वाले सोच रहे होंगे, why is this minister preaching such a message? ये सेवक ऐसा संदेश क्यों प्रचार कर रहा है, And that too on a marriage? और वो भी एक शादी के दिन। But I don't know, I am forced लेकिन मैं नहीं जानता, उस पर दबाव है इस बात to tell it. मैं इसको बता दूं। These two spirits are now, brothers, separated. ये दो आत्मा मेरे भाई अब अलग हो रही हैं, And they can't stay together. और वो एक साथ रह नहीं सकती, They can't. नहीं रह सकती। They cannot come to that part वो उस वाले हिस्से में आ नहीं सकती when they really become the word. जब वो वास्तविकता में वचन बन जाए। That is the step missed by the foolish virgin. ये वो चरण जो कि मूर्ख कुंवारी के द्वारा मिस किया जाता है, They can't understand वो समझ नहीं सकती। the unity of God with His people. जो एकता खुदा की अपने लोगों के साथ है, That is the stage we are living in. ये है वो अवस्था जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। But Christ, लेकिन मसीह He is finishing His marriage in these 7 steps. इन 7 चरणों में होते हुए शादी को समाप्त कर रहे हैं, And now we are almost at the 7th step और हम लगभग उस 7वें चरण में पहुंच चुके हैं, when He takes some elect people. जबकि वो लेंगे कुछ चुने हुए लोगों को। Amen. The prophet clearly said, नबी ने साफ रीति से कहा, bride is not groups. That's दुल्हन right. झुंड नहीं है, Bride is individuals Amen. दुल्हन व्यक्तिगत लोग हैं, who He's coming to take. जिसको कि वो आ रहे हैं ले जाने के लिए, And He will come. और वो आएंगे, He has come. वो आ चुके हैं। Amen. And there are those who are ready. और फिर वो लोग हैं जो तैयार हैं, There are some who are ready. कुछ हैं जो तैयार हैं। Can I see some people here in this room? क्या मैं यहाँ तक इस कमरे में कुछ लोगों को देख सकता In हूँ this church? इस चर्च में, Who can say I'm ready? जो कह सकते हैं मैं तैयार हूँ। His bride had made herself ready. ये दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, She's covered with a robe of righteousness. वो धार्मिकता के वस्त्र से ढकी है। Amen. Amen. Where is she now entering? अब वो कहाँ प्रवेश कर रही She is है? now going to the next last step. अब वो अंतिम चरण में जा रही है, The wedding supper. ब्याह का भोज। Christ takes His bride home. मसीह अपनी दुल्हन को घर ले जाते हैं। You see, that's the difficult part for people to understand. आप देखिए, ये बड़ा मुश्किल हिस्सा है लोगों के लिए समझने के लिए। What we meet in the air जो जिससे हम हवा में मिलते हैं, is the corporal body. वो है पार्थिव देह। What has come जो आया है, is His theophany body. Amen. वो उनकी Amen. थियोफनी देह है। When He has come as Word, जबकि वो वचन के रूप में आए हैं, unite with His bride. ताकि अपनी दुल्हन के साथ एक हो जाए। Now ask yourself a question. अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, Have you been married? क्या आपकी शादी हो चुकी है? In every marriage, He said, हर एक शादी में उन्होंने कहा there are 4 steps.
4 चरण है। I'm finishing now. बंद करूंगा। One is decisions. एक है फैसला लेना, Second is engagement. और दूसरा है सगाई, Third is marriage. तीसरा शादी है, And we have seen that. और हमने इसको देखा। And the fourth is the supper. Sorry, heirship. और चौथा जो है वो संगी वारिस होना है। That's where the bride is moving today. ये वो जगह है, ये वो स्थिति जहाँ पे दुल्हन आज पढ़ रही है। Joint heirs with Christ. मसीह के साथ संगी वारिस। Have you eaten the book? क्या आपने पुस्तक को खा लिया? आपकी शादी में बहुत अजीब मैसेज प्रीच कर रहा हूँ भाई, आज मैंने ऐसा मैसेज पहले भी प्रीच किया, लेकिन आज तो पता नहीं मजबूर हूँ, मेरी खुंदक नहीं है ये, मैं आप उनसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी कोई खुंदक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ विवश हूँ कुछ बोलने के लिए, तो मैं लोगों से बोल रहा हूँ। Have you eaten the book? क्या आपने पुस्तक खाई है? या अपना समय बर्बाद किया जनाब? Have you eaten the book, brother? मेरे भाई, क्या आपने पुस्तक को खाया है? Have you eaten the book, sister? बहन, क्या आपने पुस्तक खाया है? Book? किताब? Which book? कौन सी किताब? Your marriage contract, आप विवाह का कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, Amen. which he brought down in this age. Amen. जिसको इस युग में लेके आए। The friend of the bridegroom carried those papers with him. Amen. दूल्हे के दोस्त ने उन कागजों को अपने साथ लेके चला And seeking those. और उनको खोजता है। देखिए ब्रदर, तेल जल्दी दिखता नहीं, तेल है या नहीं है, तेल प्रकट होता है आमद के विषय में, और जब शादी आए, मेमने का ब्याह आए, तेल तब समझ में आता है या नहीं है, और है या नहीं है फिर कैसे प्रकट होता है? कुछ कामों में, Amen. कुछ कामों में। वो काम, अगर टाइम नहीं है कि मैं उन कामों की एक फहरिस्त बताऊं, वो काम ही बता देंगे कि आपके पास ब्रदर सिस्टर तेल है या नहीं। यहां सब समझदार बैठे हैं, तो मैं जरूरत नहीं समझता कि मैं वो लिस्ट समझाऊं कि जब तेल होता है तो क्या होता है, जब तेल नहीं होता है तब क्या होता है। ब्रदर और सिस्टर, सच बात है। ये तो आप बेहतर जानेंगे, लेकिन याद रखना, जिनके पास तेल नहीं था वो खुब्बा तंबू में घुस नहीं पाए, अगली स्थितियों में वो जा नहीं पाए, वो रह गए, उनकी कहानी वहीं खत्म। They can't understand the other steps. वो बाकी चरणों को समझ नहीं पाए। आप जिसके पास तेल नहीं, उसे बादल समझा के देखो। आप जिसके पास तेल नहीं, उसे मसीह की दूसरी आमद समझा के देखो। आप आएंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। Cannot teach them. आप उन्हें सिखा नहीं सकते। अकेले ही लगी घड़े, ही लगे घड़े, चिकने घड़े, पानी डालो और कोई असर नहीं। To whom shall he teach knowledge? वो ज्ञान किसको सिखाए? टाइम हो गया, खाना करें, जल्दी करें, हम घर पहुंचे यार। This is wasting so much time. इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? Carnal people cannot understand God. और ये खाली शादी की बात नहीं है, मीटिंगों में भी घड़ी ताकते रहते हैं। बहुत लंबा बोल दिया यार, मुझे जाना था, मेरा एक अपॉइंटमेंट था, मिलना था, कब करेंगे? इसी बहुत सी बातें हैं, मतलब थोड़ी मोटी नहीं है, लंबी चौड़ी लिस्ट है जो ये समझाएंगी कि भाई आपके पास और सिस्टर आपके पास तेल है या नहीं है। जिनके पास तेल होता है, पता नहीं उनके पास खुदा के लिए कैसे टाइम निकल आता है। सच बात है। जिनके पास तेल नहीं होता है, वो चाह के भी नहीं आ पाते। बहाने मारो 10, बोलो 10 बातें, फर्क क्या होता है? बहन वचन में समझा कि औरतों के बाल ना कटे। मैंने कहा कि थोड़ी ना थे, वो अंड से थोड़े दो हो गए थे, उन्हें थोड़ा सा कैंची चला दी, सीधा कटिए, सीधे किए। आपने इतने काटे तो पूरे ही काट लो,
मेरे को मालूम ये बात अच्छी भी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन यहां समझ में आएगा बहन या भाई, Amen. आपके पास तेल है, Amen. देखिए बुरा लगे मत सुनिए, और अगर अच्छा लगे तो ग्रहण कर लीजिए। Amen. Amen. क्योंकि आपको थोड़ा झटका दूं, जिनको आप आने के इंतजार में बैठे हैं या बैठी हैं, वो आ चुके हैं। Amen. 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 We are not waiting for the coming, we are in the coming. Amen. Amen. In that coming, we are in that marriage. Amen. अंदर तेल हो और मुंह से आमीन ना निकले, अंदर तेल हो और मुंह से हालेलुया ना निकले, हो ही नहीं सच सकता, बात है। हो ही नहीं सकता। जिसके पास तेल है वो चलता है। भाई बहुत माफ करना, आज मैं आपके बेटे की शादी में ऐसे God bless you, भाई। God bless you. सॉरी। God bless you, भैया। जहां तेल होगा वो दिखाई देगा, और जहां तेल नहीं उन पे खूब धोखनी लगा देना। जब ये नंदी थी घूमते लगा देना धोखनी, बोल प्रेसरा, बोल प्रेसरा, झगड़ा ढीला कर, कुछ नहीं होगा। सच बात है। नदी के साथ कुछ नहीं होगा। नो ऑयल, कोई तेल ही नहीं है। Which marriage? कौन सी शादी? Which Jesus? कौन सा यीशु? Which Christ? कौन सा मसीह? Are you a Christian? क्या आप मसीह है? Do you have an address? क्या आपको कोई पता है? Do you know there is a forerunner? आपको मालूम है कि एक पेशवा है? Do you know there is a friend of the bridegroom? क्या आपको मालूम है दूल्हे का एक दोस्त है? Whose ministry is to announce his union? जिसकी सेवकाई ये है कि उसकी एकता को वो समझाए कि उसकी एकता दुल्हन के साथ हुई। When Christ united with his prophet, he spoke and it happened. Amen. जब वो मसीह इस नबी के साथ हुए वो बोला और वैसे ही हो गया। Let there be a story. Amen. Let the storm be calm. Let the tumor vanish away. वो क्यों ना शादी गया? What is this? ये क्या है? This is a marriage. एक शादी है। This is a union. एकता है। One God एक खुदा united with a man. एक आदमी के साथ एक होते हुए। Is it over? क्या ये खत्म हो गया? Is it finished in 1965? 1965 में क्या किस्सा खत्म? Do we have some more human bodies? क्या हमारे पास कुछ और इंसानी है? Where the word wants to become one? जहाँ पे वो वचन एक होना चाहता है। When that happens, जब ऐसा होता है, my son, मेरे बेटे, now you speak. तुम बोल, What do you want? मुझे क्या चाहिए? Speak it, इसको बोल दे। and it shall be. ऐसा होगा। You're not just my bride. तू केवल तेरी दुल्हन नहीं है। You're a blessed bride. तू एक ऐसी दुल्हन है जिसको कि स्थान मिल चुका है। Stand by me. हम तेरे साथ खड़े You हो। have a blessing. तेरी एक blessing है। Stand on my right side. मेरी दाहिनी ओर खड़े हो। You are my government. तू मेरी सरकार है। You are my government. तू मेरी सल्तनत है। My power is in you. तेरी सामर्थ तुझ में है। My word is in you. मेरा वचन तुझ मेरे अंदर है। I will use your mouth. मैं तेरे मुंह का इस्तेमाल I will करूंगा। use your hands. मैं तेरे हाथों का इस्तेमाल करूंगा। I'll come in you. मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा। In a marriage, एक शादी में I and you will become one. मैं और तू एक हो जाएंगे। And speak my right. और मेरी दुल्हन बोल। Shake this world once more. And I'll take you home. Shew that mitzvah. Shew that mitzvah. The wedding supper. ध्यान का बोझ। 25 is ending. 25 समाप्त हो रहे हैं। 26 is starting. Amen. 26 चालू हो रहा है। Some things are happening. कुछ चीजें हो रही हैं। Amen. We can see the two spirits. तो आत्माओं को देख सकते हैं। We don't judge anybody, किसी का न्याय नहीं करते, but we talk about spirits. लेकिन हम आत्माओं के विषय में बात करते हैं। They can't. One can understand. एक समझ सकता है, The other can't. लेकिन
लेकिन दूसरा नहीं समझ पाता। But by the grace of God, लेकिन खुदावंद के अनुग्रह से there is a bride. एक दुल्हन है आज। How many remember that preview? कितनों को याद है वो पूर्व छाया? Churches. वो पूर्व दर्शन जो नबी ने देखा, कलीसियाएं। But finally, लेकिन आखिरकार there is a bride. And she's marching to the tune of onward Christian soldiers. और वो onward Christian soldier की धुन में कदम मिलाते हुए चल रही है। The bride, दुल्हन she's called, बुलाई गई and she's going to the wedding center. और वो अपने कोच में जा रही है। Sister Alicia सिस्टर अलीशा, and Brother Anubhav, भाई अनुग्रह, a type of Christ मसीह की तस्वीर and a type of the bride, और दुल्हन की तस्वीर becoming one, एक होते हुए, which we are seeing at the end of this year. जिसको कि हम इस साल के खात्मे में देख रहे हैं। And she's arrayed in a white bride cloth, और वो ओढ़े हुए हैं उस सफेद दुल्हन के वस्त्र को, which reminds us जो हमें याद दिलाता है of the fine linen, उस महीन मलमल का, the theophany, जो कि थियोफनी है, with which he has covered us, जिससे उसने हमें ढाका है, that we are not seeing ourselves, कि हम स्वयं नहीं देख पाते हम अपने स्वयं आप, भी अपने आप को देख पाते हैं, but we are covered with his righteousness, लेकिन हम उसकी धार्मिकता से वस्त्रित हैं, united with him. उसके साथ एक होते हुए। I think you're understanding it, सोफा भी समझ रहे होंगे आप? and now ready और अब तैयार to go to the wedding supper, या के भोज में जाने के लिए Shudat Misra, शील मिtzvah, rapture. Amen. The 7 blessings have been given. सात बरकतें दी जा चुकी हैं। Only the bride can hear those 7 voices. केवल मात्र दुल्हन ही उन सात बरकतों को सुन सकती है। 7 voices. सात आवाज़ों को सुन सकती है, Others cannot. बाकी नहीं सुन सकते। I'll say you're a privileged people मैं कहना चाहता हूँ आप बहुत ही मुबारक लोग हैं, Amen. सौभाग्यशाली लोग हैं, if you're a part of that bride. अगर आप उस दुल्हन का हिस्सा हैं। I'll greet my fellow brothers and sisters here. मैं अपने सभी भाई और बहनों को ग्रीट करना चाहूँगा। God bless Pastor Rohit Lopez खुदावंद पास्टर लोपेस को बड़ी बरकत दे। and the church here at Meerut. कलीसिया यहाँ मेरठ में है। God bless you. God bless you. Amen. Stay with your pastor. अपने पास्टर के साथ बने रहे। Amen. There might be some times कुछ समय ऐसे हो सकते हैं when you will not understand what he's saying, कि आप समझ ना पाएंगे बातों को जो वो कहते हैं, but just believe it. लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कलीसिया के लोग आगे केवल आप विश्वास करें And stay with your और pastor, अपने पास्टर के साथ टिके रहे, बने रहे, and God will bless you more. और खुदावंद आपको और गहराई से बरकत देंगे। That's what the message teaches us. एक चीज संदेश में सिखाता God है। bless Pastor Ajit Paul God bless you, खुदावंद भैया. पास्टर जी पर बड़ी बरकत दे and his church members who are here, और उनके कलीसिया सदस्य को जो यहाँ पर मौजूद हैं and the near and dear ones who have come, और जो करीबी लोग आगे जो यहाँ पर आए हैं and the near and dear ones of Brother Moses and Sister Moses. और भाई मोसेस और बहन मोसेस के जो करीबी हैं और रिश्तेदार हैं, God bless all of you. खुदा आप में से हर एक को बड़ी बरकत दे। I'll just say one word: मैं केवल एक बात बोलूंगा, Happy Rapture. हैप्पी Amen. Same to you, भैया. God bless you. If the going home doesn't take place, I'm your bride, अगर दुल्हन का यहाँ से जाना भी ना हो then we'll meet again. हम दोबारा मिलेंगे, But if the going takes place, लेकिन अगर आमद और यहाँ से जाना हो जाता we है meet each other. Amen. Yeah. Amen. With all our loved ones तमाम प्रियजनों के who साथ have gone on before, यहाँ से पहले जा चुके हैं, but they are going to rise up लेकिन वो जी उठने वाले हैं and they are going to come out of the graves. और वो कब्रों से बाहर निकल के आएंगे। One of these days, brother. Amen. मेरे भाई, And what a happy procession it will be. Hallelujah. क्या ही खुशहाल प्रोसेशन होगा वो। Everybody 21, 22 years old हर एक Amen. 22 साल का going home with the groom Christ. दूल्हे मसीह के साथ घर जाते हुए। Are you ready for that time? क्या आप उसमें इंतजार Amen. कर रहे हैं? God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। Take care of our brother भाई उनकी देखरेख करना and you respect him. और आप उनका आदर करना And you have Ephesians 5 to read और आपके पास इफिसियों 5 में पढ़ने के लिए and you have a revelation और आपके पास प्रकाशन है to follow in your marriage.
कि अपनी शादी में हम आगे बढ़े। Give first preference to God. पहला जगह खुदा को देना, Pray together. एक साथ दुआ करना, Pray early in the morning. सुबह जल्दी तड़के दुआ करना। I'm just giving you a few things. कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ And you'll get results. और आपको परिणाम मिलेंगे And you'll find blessings in your Amen. house. और अपने घर में आपको बरकतें मिलेंगी। What is not done will be done. Amen. नहीं हो रही वो हो जाएगी। God will bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। I'll finish my message here मैं संदेश यहाँ समाप्त करूँगा। and say God bless, and I'll call Pastor Lopez to finish the meeting. Sorry, Brother Lopez, I'm disturbing you quite often. माफ कीजिएगा भाई लोगों को, आपको बार-बार अंत करता हूँ। Amen. मैं बुलाना चाहूँगा पास्टर लोपेस को कि वो सभा को समाप्त करें। I'll call Brother Pastor Lopez, पास्टर लोपेस को बुलाता हूँ। my brother. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Amen.